What kind of salary or compensation were you drawing back then? I think my monthly salary was in 7 figures. So is it safe to say that you were making north of 1 crore in a year? Yeah. Yeah? Much more than that, yes. What do you think? Could you have ever bought a Lamborghini with your full-time job? Maybe in 5 years, yes. My dad did multiple businesses and suddenly my father passed away one day and I realized कि मेरे family पे 10 करोड़ रुपए का debt है. The next question is from Ritu. I have 2 children aged 3 and 5. I wish to create a college fund for them. I anticipate needing 20 lakhs for each child's education in 15 years. आपको क्या लगता है? I think for 2 kids, a reasonable estimate would be somewhere between 1.5 crores and 2 crores, right? Wow. In 15 years. Yeah. The next question is from Arvind. I am a 40-year-old working in Gurgaon and over the years I have accumulated credit card debt amounting to 10 lakhs due to some poor financial decisions. How can I get out of this debt trap and start saving for my children's future? इनका अगर 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का डेट है और वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं तो साल का इनका 4-5 लाख रुपए तो इसी में चला जाएगा. सो मोस्ट ऑफ हिज मनी विल गो इनटू दिस, सो दैट विल मेक इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सेव. सो इसमें the specific answer for him is Hello and welcome to a new episode of Ask the Expert. Today we are in Bangalore. I'm sitting with Harish Reddy. He's the founder of Stable Money app. Stable Money is a marketplace wherein you can invest in different fixed deposits from banks and NBFCs. Harish Reddy, welcome to the show, sir. How's Thank it you. going? क्या चल रहा है आपका? बस यार बढ़िया चल रहा है. I think we've launched Stable Money 2 months back. We're seeing great traction. But yeah, thank you. So the format of this is very simple. People from across India have sent their very personal finance questions and मैं और आप मिलके इन सारे questions के answers देंगे, ठीक है? But before that, can you give me some background about yourself कि आज तो आपने Stable Money शुरू किया, ठीक है? But आप पहले क्या करते थे? So मैं हैदराबाद से हूँ. I went to IIT Bombay 2006 to 2010. I did my electrical engineering. उसके बाद I joined a hedge fund called ST Advisors, which does automated high frequency trading या simple भाषा में algorithmic trading. And I joined as an analyst into this new world and I set up new algo trading branches for them. I started as an analyst. In 3 years I became a director there and I went to a stage where I was doing 90% of the company's revenues. So did that for 7-8 years. Really enjoyed that there. उसके बाद I took a year off for non-compete. And after that, I reconnected with Saurabh, who is a college friend of mine. तो आपने जॉब कितने साल किया? मैंने जॉब किया 12 साल. 12 साल किया, ठीक है? और आप आईआईटी बॉम्बे से हो, आपने हेज फंड में काम किया, आप डायरेक्टर भी थे. सो आई एम गेसिंग दैट यू आर मेकिंग good money, right? What kind of salary or compensation were you drawing back then? I think my monthly salary was in 7 figures. Oh, ठीक है. तो it was good, it was comfortable, right? Yeah. इंडिया में रहते थे आप? Yeah, इंडिया में रहता था. So what was the reason for you to start a company, Stable Money, like? So it was aspiration. I think जब से मैं कॉलेज छोड़ा था, I wanted to do something जहाँ पर मेरा खुद का कंपनी मेरे को चलाना था. But something happened in personal life where my dad did multiple businesses and suddenly my father passed away one day and I realized कि मेरे family पे 10 करोड़ रुपए का debt है, right? So the situation did not allow me to get into a startup. Luckily I was in a job where if you perform you could get paid really well. So that's why I continued in my job. I got to a position where I could clear off my debts. Oh, you cleared all your debt? Everything, yeah. So I think wow. it took a few years. Got to a position where I could clear my debt off and also create a corpus for myself which guarantees me safety. ठीक है. So is it safe to say that you were making north of 1 crore in a year? Yeah. Much more than that, yes. Much more than that, right? What are you expecting? Like, the reason why I'm asking this is like, if somebody is already earning in crores, right? Yeah. How much of a financial jump or a pay jump can they expect if they start a business of their own? I think initially though you come to 10% of the salary that you're making earlier. Of course. I think in the long run, this is a high risk, high return game, right? If you succeed, you can do 10, 20, 100x of what you're making earlier. But there's a fair chance कि वो ना भी बने. So it's that journey जहाँ पर आप investing में देखते हो you need some money for really safe assets and there's a part where you take care. मैं यहाँ risk ले रहा हूँ, मेरे को पता है risk ले रहा हूँ, you understand your risk, but if you win big.
ठीक है. The reason why I'm asking all this question is because the first question Right. was from Krishna. Krishna said, "I am a 30-year-old engineer from IIT earning in crores. Okay. I am very happy with my compensation, but I feel I'll never be able to buy a Lamborghini by doing a job. That's Right. why I am planning to start a business. Can you ask an entrepreneur if this makes sense, if I can make more money?" What do you think? Could you have ever bought a Lamborghini with your full-time job? Maybe in 5 years, yes. Oh, you could? Yeah, maybe in 5 years, yes. But I think I understand. I think ये बहुत लोगों के लिए this is not possible. But if Lamborghini is the motivation behind a startup, there's a very high chance that it won't succeed. I think it should ideally be the impact of the business that you would like to. Lamborghini तो एक example हो गया, but like whatever cars or expensive houses are we talking about, most of them have been purchased by people who are self-employed. Yeah, Right? absolutely. ठीक है, so ये तो पहला क्वेश्चन था. The second question is from Deepa. I am a 35-year-old teacher in Pune and earn 60,000 rupees per month after deductions. My husband earns 70,000 rupees per month. We are planning to buy a house worth 60 lakhs in the next 4 years. We can save rupees 30,000 every month. How should we plan our finances to make a down payment of 20 lakhs? तो इनके पास 4 साल का टाइम है, राइट? इफ़ यू हैव अ स्मॉल टाइम फ्रेम कि 3 साल 4 साल 5 साल, आई वोंट एडवाइज इक्विटी, क्योंकि 4 साल बाद हो सकता है मार्केट 20% गिर जाए, जैसे कोविड में हुआ था. एंड इनको 20 लाख सेव करना है एंड दे आर सेविंग 30,000 अ मंथ राइट नाउ, सो दैट मेक्स 3.6 lakhs दिस ईयर. एंड देर आर FDs जो आपको 8-9% देते हैं. एंड गिवन द टैक्स ब्रैकेट, आई एम अज्यूमिंग ये 0 या 10% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं. Yes. तो इनको टैक्स का भी कोई चिंता नहीं है. So if they can save 30,000 into FDs which give 8.5-9%, and every year they top that up by 10%. कि इस साल मैंने per month 30,000 सेव किया, next year 33,000, next year 36 and 39. By the end of 4 years they should get very close to 20 lakhs. So जब आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, when you can meet your targets through the amount that you could save, तो fixed income पे रहिए, you'll hit your 20 lakhs. ठीक है, so I hope that answers your question, Deepa. Second question is from Ashima. I am a 28-year-old doctor in Hyderabad. I have recently started my own clinic and my income varies between 1 to 1.5 lakh rupees per month. ठीक है, I want to plan for a Euro trip in 3 years that might cost around 10 lakhs. What investment avenue should I consider? I think similar ही होगा. Very similar answer, but the only difference is buying a home is a very critical thing जो आपको करना ही है. Euro trip can wait 1 year in the worst case. So यहाँ पर थोड़ा सा you can put your money into Nifty as well, कि यार हाई चांस है that you make slightly higher returns. तो 30% आप निफ्टी में डालिए, 70% फिक्स्ड इनकम में डालिए, तो 3 साल की जगह शायद 2.5 साल में यूरोप जा सकते हो. Yeah, cool. That makes sense. Reason being, Euro trip अगर 6 महीने बाद भी हो जाए, 1 साल बाद भी हो जाए, your life's not going to change drastically. ठीक है, cool. Next question is from Ritu. Wow, आज for a change, we have been getting a lot of questions from female. ठीक है, thank you so much guys, all the female viewers who have given their questions. The next question is from Ritu. I have 2 children aged 3 and 5. I wish to create a college fund for them. Considering the rising education costs, I anticipate needing 20 lakhs for each child's education in 15 years. How much should I start investing now and where? First things first, Ritu, ठीक है, 15 साल बाद आपके बच्चे की कॉलेज एजुकेशन 20 लाख रुपए में तो नहीं होने वाली है. टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, इन 2005 इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में जो MBA प्रोग्राम है दैट कॉस्टेड 15 lakhs. टुडे इन 2023 इट कॉस्ट मोर देन 40 lakhs. ठीक है, आपको क्या लगता है कॉलेज Absolutely, एजुकेशन? 20 lakhs शायद अभी 20 lakhs लग रहा होगा. If you look at 15 years, it will easily become. आपके टाइम पे IIT की फी कितनी थी? मेरे टाइम पे आई थिंक फीस वाज 25,000 a year. आज कितनी होगी? आज आई थिंक 1.5 से 2 लाख a year. 1.5 से 2 लाख है. 10 years it became 10x. But IIT is also government funded है, थोड़ा सा subsidies भी है. But if you look at private colleges, easily this 20 lakhs can become 60-70 lakhs. So what should be the plan? Firstly आप ये बताइए कि 2 बच्चे इनके, दोनों बच्चों के कॉलेज फंड के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे? अगर इंडिया में पढ़ना होगा तो कितने चाहिए होंगे? I think for 2 kids, a reasonable estimate would be somewhere between 1.5 crores and 2 crores. Right? Wow. In 15 years. Yeah. And क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं and इनके पास 15 साल का टाइम है, तो they should put more money into equity. अब देखिए इक्विटी में एवरेज रिटर्न जो आता है वो 12% के आसपास आएगा और फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा आपको 8 से 9% देते हैं. तो मैं इनको एडवाइस करता हूँ कि आप 80% पैसा इक्विटी में डालिए, 20% FDs में डालिए. बट रीज़न इसका ये है कि कल को अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आपके पास एक कॉर्पस है 20% से निकाल के थोड़ा सा इसमें डालने के लिए जो आपका ओवरऑल रिटर्न को बढ़ाए.
तो आई थिंक अभी टू कीप थिंग्स सिंपल 20% इंटू फिक्स डिपॉजिट्स, 80% इंटू निफ्टी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स विल डू. ठीक है, आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर रह चुके हैं. आई एम गेसिंग दैट योर रिस्क एपेटाइट मस्ट बी हायर देन एवरेज, राइट? व्हाट इज योर टेक ऑन स्मॉल कैप फंड्स एंड मिड कैप फंड्स, पर्टिकुलरली फॉर दिस गोल, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन गोल. सो स्मॉल कैप फंड्स एंड मिड कैप फंड्स में कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आपको लमसम पैसे डालना चाहिए. अगर आप SIP करते हो स्मॉल कैप्स इज गुड, बिकॉज जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं निफ्टी में, अगर 30% ऊपर और 30% नीचे आता है तो स्मॉल कैप विल गो 60% हाई एंड 60% डाउन. डू यू हैव किड्स राइट नाउ? आई हैव अ 6-month-old बेबी गर्ल. 6 month old, congratulations. आप कैसे उनकी कॉलेज फंड का प्रिपरेशन कर रहे हो? वो मैं बेटी पैदा होने से पहले से ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सो आई थिंक आई स्टार्टेड अर्ली, टाइम इज ऑन माई साइड. मैं हर मंथ एक SIP करता हूँ. किस में डालते हो आप? मेरे 2 मेजर फंड्स है. एक निफ्टी का इंडेक्स फंड है जहाँ पर मेरा 70% पैसा जाता है. दूसरा मैं 30% पैसा US के म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, विच इज़ NASDAQ. तो इसका यूज़ केस ये है कि अगर मेरी बेटी को बाहर जाके पढ़ना है तो डॉलर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो मेरे पास कुछ पैसे होना चाहिए डॉलर डिनोमिनेटेड, विच विल गिव मी दैट अपसाइड. तो इसीलिए 70% इन निफ्टी इंडेक्स फंड, 30% इन NASDAQ इंडेक्स फंड इज व्हाट आई एम डूइंग. एंड दैट आल्सो मेक्स सेंस, राइट? क्योंकि हर साल जो रुपीज है, the rupee depreciates on an average 3 to 4% against the US dollar. तो आप ये चीज समझे कि 15 साल बाद $1 का वैल्यू करीब 140-150 रुपए हो जाएगा आराम से. So he is right. If there is even a small chance that the person, that his daughter is going to study in abroad, डॉलर में सेव करना शुरू करना मेक सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण का. ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन चेन्नई फॉर द लास्ट 10 years एंड आई हैव सेव्ड 15 lakhs. ठीक है, आई वांट टू डाइवर्सिफाई माय इन्वेस्टमेंट्स. शुड आई कंसिडर रियल एस्टेट एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? Oh, very interesting. So real estate में I've seen a lot of people who made 100x in real estate and I've seen a lot of people जो 10-20 साल में कुछ भी पैसा नहीं बनाए. I think the biggest, I think 2 issues जो मेरे को यहाँ दिखते हैं कि information is very very important in real estate. कि आप स्टॉक मार्केट में क्या आपको निफ्टी खरीदना है, सबके लिए सेम प्राइस है, बट रियल एस्टेट आपको खरीदना है, यू शुड नो द वैल्यू. कि आप जाओगे, ब्रोकर आपको कुछ प्राइस बताएगा, कोई इन्फॉर्म्ड बंदा जाएगा उनको कुछ और प्राइस बताएगा. तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है उस एरिया में एग्जैक्टली क्या रेट है, that is when you can look at real estate. And the other issue that I see with real estate is liquidity. आपको जिस दिन पैसा चाहिए उस दिन नहीं मिलेगा रियल एस्टेट में, आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिलेगा, बिकॉज वो बिकने में उतना टाइम लगता है. एंड जब आप इस इंटेंट के साथ जाते हो तो मेरे को बेचना है, दैट ब्रोकर विल ऑल्सो से कि यार आप 10% प्राइस गिराइए तब बिकेगा, 20% गिराए तब बिकेगा. तो रियल एस्टेट इज एडवाइजेबल फॉर पीपल जिनको समझ आता है वो मार्केट, जिनका कनेक्ट है, हु कैन ऑल्सो एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी दैट दे आर बाइंग. हाँ. The pros being, I think the returns could be extraordinarily high if you get your bet right. And बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर हो गए through real estate. जैसे पब्लिक मार्केट्स है, कैपिटल मार्केट्स है, उसका इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है. तो अगर रिलायंस में कुछ चेंजेस आता है या फिर बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली न्यूज आता है, एवरीबडी हु वांट्स टू नो द अपडेट विल गेट टू नो. बट ये चीज रियल एस्टेट के केस में नहीं है. ठीक है, तो अगर पंचगनी में कोई नया मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको जितना जल्दी वो इंफॉर्मेशन मिलेगा आप उतना ज्यादा पैसा बना सकते हो. एंड दैट्स व्हाट ही मीन्स कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू बी अ सीरियस रियल एस्टेट इन्वेस्टर. डू यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? नो. मेरे इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरे को अगर ये पता है कि यार मेरे को कल को पैसे चाहिए तो मैं लिक्विडेट करके पैसा ला सकता हूँ, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो इसीलिए मैं कोई भी ऐसे एसेट में नहीं डालता हूँ जहाँ पर पैसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है. तो रियल एस्टेट में व्हाट आई हैव इज एन अपार्टमेंट जहाँ पर आई कैन स्टे, माई मॉम कैन स्टे, विच टेक्स केयर ऑफ दैट सिक्योरिटी. वो हैदराबाद में है. बाकी एवरीथिंग एल्स इज इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एफडीज. तो रियल एस्टेट जो आपका जो घर है वो रहने के लिए है? वो रहने के लिए. Next question is from Shruti. I am a freelance designer based in Jaipur, earning around 50,000 rupees per month. Given the irregular nature of my income, how can I best manage my finances and save for an emergency fund? Oh, this is a very important question. I think मेरा बहुत favorite topic है is saving for an emergency fund. Not only freelancers, कोई भी जॉब करने वाला इंसान हो, they should at least have 6 to 12 month of their salary in an emergency fund. क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोविड सिचुएशन आ सकता है, एज ए फ्रीलांसर आपको शायद कुछ दुनिया के लिए काम नहीं मिलेगा. सो जस्ट टू हैव दैट मेंटल
कॉन्फिडेंस कि यार मेरे पास एक साल के लिए काम नहीं भी हो तब भी चलेगा मेरा घर, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना ज़रूरी है। एंड इमरजेंसी फंड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड हैज़ टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल एंड एब्सोल्युटली लिक्विड। आप अपना इमरजेंसी फंड के लिए यू शुड सेव इन मे बी डेट म्यूचुअल फंड्स एंड एफडीज। इसके अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट देखिए मत फॉर इमरजेंसी फंड, एंड उसको जितना जल्दी आप अचीव कर सकते हो उतना अच्छा है। सो फॉर श्रुति आई थिंक कट डाउन योर एक्सपेंसेस टू अ मिनिमम, एंड जो सेव कर सकते हो एंड गेट टू दैट 6 month ऑफ इमरजेंसी फंड फर्स्ट, फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। एक बार 6 महीने का आपका सेफ्टी गारंटीड है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, जहां पर ग्रोथ आपको थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है। So you said FD and debt mutual funds are two alternatives, right? I know you guys do fixed deposits, but can you tell me which asset is better for your emergency fund holistically? सो आई थिंक आपको बस रिटर्न देखना चाहिए, यू नीड लिक्विडिटी एंड रिटर्न। तो मैं म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड उनके लिए एडवाइस करता हूँ जिनका होराइजन 3 से 6 महीना है। मेरे को 6 महीने बाद पैसा चाहिए तो आप डेट म्यूचुअल फंड में डालिए, लेकिन आपका होराइजन थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे को 1 साल से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, विच शुड बी द केस फॉर इमरजेंसी फंड, जहाँ पर आप वो पैसा रखना चाहते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बट जब चाहिए आप विदड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एफडी में प्रीमेच्योर विदड्रॉल का ऑप्शन आता है। तो 3 से 6 महीने के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स गिव द बेस्ट रिटर्न राइट नाउ गिवन द मैक्रो एनवायरनमेंट। आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन एफडीज में 3 से 6 महीने का करते हो तो आपको 4 से 6% का रिटर्न मिलेगा एनुअलाइज्ड बेसिस पे। एनुअलाइज्ड बेसिस। लेकिन अगर आप 1 साल से ऊपर का देख रहे हो, देन एफडीज राइट नाउ हैव द बेस्ट रिटर्न्स पॉसिबल। सो फॉर एग्जांपल ऑन स्टेबल मनी यू हैव an Utkarsh Bank का FD which gives you 8.5% return for a 2-year FD. This for senior citizens or This no? is for regular. Wow. For senior citizens it's 9.1%. And one feature with FDs is 8.5% जब मैं कहता हूँ that is quarterly compounded. तो आपको एक क्वार्टर में 8.5/4 मिलेगा, नेक्स्ट क्वार्टर में कंपाउंडिंग आपको प्रिंसिपल प्लस जो 8.5/4 है उस पर मिलेगा, तो आपका एनुअल यील्ड 8.8% हो जाता है। एंड द ब्यूटी इज आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा इज इंश्योर्ड थ्रू आरबीआई सब्सिडरी कॉल्ड DICGC, तो आपका कोई रिस्क नहीं है, 0 रिस्क के साथ आप 9% बना सकते हो। कंपाउंडिंग इंटरवल का इम्पैक्ट बता सकते हो आपकी, अगर कोई चीज डेली कंपाउंड होती है वर्सेस क्वार्टरली वर्सेस एनुअल, तो आप कितना ज्यादा रिटर्न बना सकते हो? तो अगर उत्कर्ष का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो 8.5 बिकम्स 8.82 क्योंकि ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। इफ इट वाज अ मंथली कंपाउंडिंग प्रोडक्ट तो दिस 8.5 विल बिकम अराउंड 8.9। अरे क्रेजी। तो इफ इट्स अ डेली कंपाउंडिंग प्रोडक्ट आई एम अज्यूमिंग इट विल बी नॉर्थ ऑफ 9%। सो बट द आयरनी इज बैंक्स कोई भी ये पब्लिसाइज नहीं करते कि यार हमारा इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, जबकि बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड से लेकर इक्विटीज से लेकर सब एनुअल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। सो दैट एडवांटेज विद बैंक्स दैट पीपल डू नॉट नो। This is something that people should understand and take advantage. The next question is from Arvind. I am a 40-year-old working in Gurgaon, and over the years I have accumulated credit card debt amounting to 10 lakhs due to some poor financial decisions. My monthly income is 70,000 rupees, but after all expenses and minimum payments, I hardly save anything. How can I get out of this debt trap and start saving for my children's future? Interesting. I think so. Credit card debt is the worst kind of debt in the country. तो क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट आपका जाता है 3 to 4% अ मंथ जाता है। सो इफ़ यू लुक एट इट ऑन अ कंपाउंडेड लेवल, जैसे हम अभी डिस्कस करते हैं, इट्स लाइक 40 to 50% इंटरेस्ट। तो इनका अगर 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का डेट है और वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो साल का इनका 4-5 लाख रुपए तो इसी में चला जाएगा, जबकि इनका सैलरी 8.4 लाख रुपीज़ है फॉर द ईयर। सो मोस्ट ऑफ हिज मनी विल गो इन टू दिस, सो दैट विल मेक इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सेव। सो इसमें द स्पेसिफिक आंसर फॉर हिम इज फाइंड अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ डेट। ये मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप कुछ और डेट का सोर्स ढूंढिए, मे बी अ पर्सनल लोन थ्रू अ बैंक, थ्रू एन NBFC, और मे बी इन द वर्स्ट केस इनफॉर्मल डेट थ्रू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, विच यू कैन गेट एट अ लोअर रेट। आपको 18% ब्याज पे मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 24% पे मिल रहा है। वो डेट लेके सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड का ये डेट है ये चुका दीजिए, एंड आप क्रेडिट कार्ड हटा दीजिए आपकी लाइफ से, बिकॉज वंस यू गेट इन टू दैट इनडिसिप्लिन ऑन क्रेडिट कार्ड्स, इट्स वेरी टफ टू गेट आउट ऑफ दिस। बट अभी वाला सिचुएशन इज अनसस्टेनेबल। बट इस सिचुएशन में सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए एट ऑल कि डेट ही क्लियर करना है? बिल्कुल भी नहीं ऐसे सिचुएशन, बिकॉज आपको मौका ही नहीं मिलेगा टू सेव। आई थिंक वेन एवर इन अ डेट ट्रैप, सो आई वॉज इन अ डेट ट्रैप, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि
more than the financial aspects, it's the mental aspect, right? आपको दिन के 100 कॉल आ रहे होंगे, तो you can't even focus on the work. So the first priority has to be to clear that debt off. That's when you can focus on what you're doing, on earning more. But I think the first priority, clear your debt. Second priority, create an emergency fund. Perfect. I hope that answers your question, Arvind. And the last question is from Pranav. I have recently inherited a diversified portfolio of equities, bonds, real estate, and alternate investments from my grandfather. The total value is approximately 10 crores. Congratulations, Pranav. आपने lottery जीत ली है. Given the current market conditions and potential future economic scenarios, how can I optimize my allocation to minimize tax implications while ensuring consistent returns and preserving wealth for the next generation? Congratulations, प्रणव, आपको 10 करोड़ का इनहेरिटेंस मिला है जो बहुत लोगों को नहीं मिलता है. I think he's talking about preserving wealth for the next generation. So he's thinking really long term. Yeah. Right? So that is where I'd recommend moving into mutual funds. Kind of thing जहाँ पर आपका एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ योर एलोकेशन शुड बी इन म्यूचुअल फंड्स. एंड ऑल्सो टैक्सेशन की इन्होंने बात की एंड वी कैन रिलेट टू द ट्रेडिंग एज वेल कि अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको हर साल 3-4% का डिविडेंड मिलता है, उस पर आप 30% टैक्स दोगे, राइट? आप हर साल एक स्टॉक को बेचोगे, दूसरा खरीदोगे, जो बेचा आप उस पर 15% का टैक्स दोगे. बट म्यूचुअल फंड में ये सब लगेगा ही नहीं. म्यूचुअल फंड में द वेल्थ कीप्स ग्रोइंग एंड जिस पॉइंट इन टाइम पे आप उसको रिडीम करते हो, दैट्स व्हेन यू पे टैक्स. अगर आप 20 साल तक रिडीम ही नहीं करते हो, 20 साल बाद आपको टैक्स भरना है. सही बात. तो इफ यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर टैक्स, 70% ऑफ योर मनी कीप इट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स जहाँ पर कॉस्ट बहुत कम है, एंड भूल जाइए. बाकी 20-30% इनटू फिक्स्ड इनकम सो दैट यू कैन बी टैक्टिकल एंड आपको एक पैसिव वेल्थ भी आता रहे, वेर यू कैन I think enjoy financial freedom. Perfect. Thank you so much. That brings us to the end of the video. Thanks, Harish, for giving your time. And I wish you and the entire team at Stable Money the best of luck. Fix Your Finance के ethos में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा important है. Your health insurance, emergency fund, and spending less than what you earn. इमरजेंसी फंड वाला जो एस्पेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट्स आउट देयर इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स. 5 लाख रुपए तक का तो आपको इंश्योरेंस ही है. अगर बैंक भी गिर जाता है फिर भी आपका पैसा सेफ रहेगा. एंड एट द सेम टाइम करेंटली द एफडी रेट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई. सो इफ यू आर प्लानिंग टू पार्क योर इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड समवेयर, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट स्टेबल मनी. स्टेबल मनी में कितने 200 बैंक्स का आप रेट एक्सप्लोर कर सकते हो. 200 बैंक्स का आप रेट एक्सप्लोर 6 से 7 बैंक में आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड हमने अभी जस्ट आरबीआई का एक सर्वे देखा है, स्टेबल मनी पे जो भी इन्वेस्ट करता है, दे आर इन द टॉप 1% हाईएस्ट यील्डिंग एफडीज इन द कंट्री. क्योंकि हमने देखा कि 99% ऑफ द पीपल अर्न लेस देन 8% इन एफडी रेट. सो इफ यू जस्ट कम टू स्टेबल मनी, यू आर गारंटीड टू बी इन द टॉप 1. और ये सारे बैंक्स है, राइट? तो इसमें इंश्योरेंस है. एब्सोल्युटली. सो स्टेबल मनी पे बैंक्स भी है, एनबीएफसीज भी है. बैंक्स हैव द इंश्योरेंस एंड द एनबीएफसीज दैट वी हैव आर बजाज एंड श्रीराम, विच आर वेरी वेल नोन नेम्स विच आर लॉट ऑफ प्रॉफिट्स. तो यहाँ पर आपका रिस्क कम है. बट इफ यू वांट टू बी एब्सोल्युटली सर्टेन, आप बैंक्स में डाल दीजिए, रेट भी अच्छा है, 5 लाख तक इंश्योर्ड भी है. मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लास्ट टाइम वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था, व्हाट इफ इन द वर्स्ट केस सिनेरियो स्टेबल मनी बंद हो जाए, आपका पैसा कहाँ जाएगा? कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी भी जब एफडी बुक होता है स्टेबल मनी में, मनी डायरेक्टली गोज टू द बैंक. आप लोग के हाथ में नहीं आता? हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं आ रहा है. वाइल पेइंग ऑल्सो इफ यू सी, वो बोलता है मनी टू उत्कर्ष बैंक, टू शिवालिक बैंक. मनी डायरेक्टली गोज टू द बैंक. बैंक में आपका एक एफडी अकाउंट बन चुका है. सेविंग्स अकाउंट नहीं बनता, बट एक एफडी अकाउंट बन चुका है. स्टेबल मनी रहे या ना रहे, ऑन मैच्योरिटी यू विल गेट बैक मनी टू द सोर्स अकाउंट जिससे आपने एफडी बनाया था. Cool. Perfect. Thank you so much. And I hope आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा हो. Please hit the like button if you have learned something new. And if you are new to the channel, consider subscribing. हम हर हफ्ते ऐसे 1 या 2 वीडियोस आप लोग के लिए लाते हैं ताकि आप smarter financial decisions ले सके. Goodbye. See you guys next time.